Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयात् इत्रतश्च अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा। कैंटो 3 चैप्टर 13 श्लोका नंबर 36। श्रक्तुण्ड आसीत् श्रुव ईशनासयोर् इदादरे चमसाः कर्णरन्ध्रे प्रासीत्रम् आश्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणानं ते भगवन् अग्निहोत्रम्। Translation: O Lord, your tongue is a plate of sacrifice, your nostril is another plate of sacrifice, in your belly is the eating place of sacrifice, and another plate of sacrifice is the holes of your ears. In your mouth is the Brahma plate of sacrifice, your throat is the plate of sacrifice known as Soma, and whatever you chew is known as Agni Hotra. हरे कृष्णा। परपोट भी बहुत छोटा है तो मैं पढ़ लेती हूँ। इट्स वेरी नाइस परपोट, छोटा सा। The Vedavadis say that there is nothing more than the Vedas and the performances of sacrifices mentioned in the Vedas. They have recently made a rule in their group to formally observe daily sacrifice. They simply ignite a small fire and offer something whimsically, but they do not strictly follow the sacrificial rules and regulations mentioned in the Vedas. It is understood that by regulation there are different plates of sacrifice required, such as Shrak, Shruva, Barhis, Chatur, Hotra, Ida, Chamasa, Prasitra, Graha and Agnihotra. One cannot achieve the results of sacrifice unless one observe the strict regulations. तो यहाँ पे बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद हरे कृष्णा कि one cannot achieve the results of sacrifice unless one observes strict regulations. तो बहुत फेमस एक श्लोका है, शिला प्रभुपाद ने कहा है हमें, तृतीयाध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। आप सब जानते हैं श्लोका? अच्छा, ठीक है। तो एनीबडी नोज दिस श्लोका, कृत्याध्याय तो विष्णु? तृतीय, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ जी माता जी, आ रही है। ओके ओके। तो कृत्याध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। तो पहले सतयुग में हम ध्यान करते थे। जब ध्यान करते थे तो बेस्ट क्वालिटी ध्यान होता था, क्योंकि सतयुग चल रहा था, हमारा मन बहुत शुद्ध था, मलिन नहीं था। तो ये ध्यान की अवस्था में हम अच्छी भक्ति कर सकते थे। फिर क्या आया? त्रेता। त्रेता में हमें क्या करना है? सैक्रिफाइस, जो यहाँ पे लिखा है कि वन कैन नॉट अचीव द रिजल्ट्स ऑफ सैक्रिफाइस अनलेस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आर फॉलोड। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जब फॉलो करेंगे त्रेता में, तब सैक्रिफाइस हम अच्छे से कर पाते थे त्रेता युग में, और हमारा यज्ञ सफल हो जाता था। फिर द्वापर में आया डेटी वर्शिप।
डेटी वर्शिप भी बहुत एक्सक्लूसिव डेटी वर्शिप द्वापर में करते थे, विदाउट नो मिस्टेक्स, वेरी क्लेनली, टू मच क्लेनलीनेस वाज फॉलोड, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस वर फॉलोड, बिकॉज पीपल वर बहुत क्लीन, शुद्ध फ्रॉम माइंड एंड बॉडी दोनों. लेकिन अब ये तीनों चीजें, ध्यान, सैक्रिफाइस, डेटी वर्शिप, वी आर नॉट एबल टू डू with proper following proper rules and regulations and with proper cleanliness. That's why Lord Srila Prabhupada has explained to us and has given us this very, very nice package that Kalau Tat Hari Kirtanat. मतलब कलयुग में you don't need to follow all this, you have to only follow Kirtan, Hari Kirtan, and that is the only way to go back home, back to Godhead. Harer Nama, Harer Nameva Kevalam, Kalau Nasteva Gatir Anyatha. Performing devotional service which can save a human being from being degraded to animal life. How? By doing Harer Nama, Harer Nameva Kevalam. One need only to chant the Hare Krishna Mahamantra. Everyone engaged in the practice of chanting the Hare Krishna Mahamantra will completely, their minds will be, their heart will be completely cleansed from the core of their heart, and they will be saved from what? From the cycle of birth and death. तो ये जो चीजें इसमें लिखी है ना, ये पर्पोर्ट में कि श्रक, श्रुव, भरिस, ये सब चीजें जब सैक्रिफाइस करते, जब हवन करते थे, ये श्रक, श्रुव, ये सब जैसे कड़छी होती है, तो अलग अलग कड़छी का एक डिजाइन होता है, एक पैटर्न होता है, उसका एक अलग अलग मीनिंग होता है, एक अलग इम्पोर्टेंस होता है उसका शेप का. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस. श्रक, श्रुव, भरिस, ये सब अलग कड़छियां है जिससे हम घी डालते हैं, जिससे हम अलग अलग चीजें यज्ञ में डालते हैं. एंड अग्निहोत्र, ग्रह, अग्निहोत्र इज अगेन ग्रेन्स एंड घी जो हम डालते हैं. प्रसरीता, इदा, चामसा, यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है कि एक पार्ट जब हम यज्ञ करते हैं हम ब्रह्मा जी के लिए भी रखते हैं, तो इसमें ये सब लिखा है. तो भगवान, जैसे हम ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति, मतलब भगवान के अंग इतने पूर्ण है. ओम पूर्णम अधः पूर्णमिदं, ही इज सो कंप्लीट कि उनको अलग अलग उनके जो अंगों से वो सारे एक्टिविटीज वो कंप्लीट कर सकते हैं, टू द फुलेस्ट, पूर्ण कर सकते हैं. चाहे हम उनके नॉस्ट्रल्स ले ले, यहाँ लिखा है, या हम उनका टंग ले ले, या उनकी बेली ले ले, या उनके कान ले ले, वो सारे कार्य जो एक नाक कर सकता है वो उनका कान भी कर सकता है, जो उनका कान कर सकता है वो उनकी आंख भी कर सकती है, जो उनकी आंख कर सकती है उनका पेट भी कर सकता है, वो सारे कार्य. तो कृष्णा ओम पूर्णमिदः है, ही इज कंप्लीट. तो इसीलिए हमें अलग 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 भगवान को ऑफर नहीं करना, हमें सिर्फ कीर्तन करना है, जिससे भगवान बहुत संतुष्ट होके हमारी भक्ति आगे बढ़ा सकते हैं. फिर आगे यहाँ पर्पोर्ट में लिखते हैं कि इन दिस एज, इस कलयुग में, देयर इज प्रैक्टिकली नो फैसिलिटी फॉर परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अशुद्धता बहुत है, इवन एक लड्डू में अशुद्धता आ गई है, तो हम कैसे सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं, है ना. तो देयरफॉर कलयुग में there is a stricture regarding such sacrifice. It is explicitly directed that one should perform sankirtan yajna. Sankirtan, नाम संकीर्तन यज्ञ सर्व पाप प्रणाशनम. लास्ट श्लोक है श्रीमद् भागवतम का कि हम नाम संकीर्तन करेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे. ठीक है. So the incarnation of the Supreme Lord is Yagneshwara, and unless one has respect for the incarnation of the Lord, he cannot perform perfectly sacrifices. In other words, taking shelter of the Lord and rendering service unto him is the factual performance of sacrifices. So the different plates of sacrifice correspond to the different parts of the Lord's bodies, of the Lord's incarnation. In Srimad Bhagavatam, 11th canto, it is explicitly directed that one should perform Sankirtan Yajna to please the Lord's incarnation as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
This should be rigidly followed in order to achieve the results of yajna performance. तो शिला प्रभुपाद ने जैसे हमारे को एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम दिया है ना. शिला प्रभुपाद always wanted कि there should be no suffering, people should be connected well with each other, and people should be very nice to each other, है ना. शिला प्रभुपाद वो खुद भी बहुत अच्छे से सबके साथ आदान प्रदान करते थे. He knew how to deal with people. He knew how to deal with different types of people. कैसे उनके साथ, किस व्यक्ति के साथ कैसे बात करनी है, किस व्यक्ति को हमें कैसे प्रीच करना है. तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, गोइंग बैक होम गॉडहेड इज इम्पोर्टेंट और प्रीचिंग इज इम्पोर्टेंट. कोई बता सकता है व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? प्रीचिंग इज इम्पोर्टेंट और गोइंग बैक होम बैक टू गॉडहेड इज इम्पोर्टेंट? प्रीचिंग. मतलब प्रीचिंग. ओके. एनीबडी एल्स? ओके. तो शिला प्रभुपाद का आंसर था कि वन हु इज प्रीचिंग has already gone back home back to Godhead. So it is both simultaneous. Okay, so preaching is important, but one who preaches also goes back home back to Godhead. ठीक है. So यहाँ पे बहुत importance दिया गया है for संकीर्तन यज्ञ. So शिला प्रभुपाद, when he went to Boston, he was only chanting. I think it's Boston. Anyone can tell me the name of the Thompson Square Park, correct? So what was he doing? He was only chanting there. वो खाली अपना करतल लेके वो चैंट कर रहे थे और slowly सब लोग आके जमा हो रहे थे वहां पर और उनके संकीर्तन में वो पार्ट ले रहे थे, है ना. ऐसे तो ऐसे ही शिला प्रभुपाद ने जो उनके स्लोली जैसे जैसे वो चैंट करते गए, उनके पास आए गुरुदास प्रभु आए, श्यामानंद प्रभु आए, ऐसे हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं वो सब आए और फिर वो लोग लंदन गए. और जब वो लंदन गए, जब वो चैंट कर रहे थे, दे केम इन टच विथ जॉर्ज हैरिसन. नो नॉट जॉर्ज, आई डोंट रिमेम्बर द नेम. इज इट जॉर्ज हैरिसन? एनीबडी कैन टेल मी? जॉर्ज हैरिसन? नो, जिसने रिकॉर्ड बनाया. जॉर्ज हैरिसन, करेक्ट. जॉर्ज हैरिसन. तो जॉर्ज हैरिसन also जी. तो जॉर्ज हैरिसन, he also was saying that where were you all? वो भी he also, because he was a devotee, he also felt के something is missing in his life. जैसे हम we are all so packed in our day-to-day life that we do not realize that there is actually a big vacuum in our lives. The materialists, there is a big vacuum in their life because they are doing everything, but they are not putting the food in their mouth. They are gathering dal, chawal, sabji, roti, kapda, makan, gaadi, jewelry, everything. But they are not decorating themselves with it. They are only accumulating it. The purpose is to accumulate and then to use it. So the using of those things is not being done in the right way. So George Harrison himself, he was also having that hunger. So when he met Srila Prabhupada and when he met the disciples of Srila Prabhupada, he was so happy and pleased. He said, "Why did you not come to me earlier?" And he made a nice record of the Hare Krishna Mahamantra, which was the topmost records in London that time. And it moved so well, इतना अच्छा बिका वो कि जो भी earnings जॉर्ज हैरिसन को उस रिकॉर्ड से मिले, उन्होंने वहां पे लंदन मंदिर, जो लंदन मैनर है, उन्होंने वहां पे वो लंदन का मंदिर बनवाया और शिला प्रभुपाद के मिशन को वहां पर सक्सेसफुल किया. कैसे? Again, example comes from Sankirtan Yajna. Everything happens because, as it says, that in this age, only Sankirtan will be helpful and nothing else. Because with Sankirtan, anyone can give me an example ke Sankirtan, how it helps us? Can someone give me an example?
See, when the reporters in London, they said that they asked Srila Prabhupada, that Srila Prabhupada, why do you say that Sankirtan helps and Sankirtan is the best process? So Srila Prabhupada said, yes, Sankirtan is the best process to cleanse the heart and also follow the four regulative principles. These two things, if you're doing, then definitely you are the best person. So the reporter said, how can you say this? So Srila Prabhupada said, you check the people, you check the devotees, you check the non-devotees. You will see by their behavior, by their actions, by their lifestyle, you will come to know that the devotee who is doing Sankirtan Yagya and who is following the four regulative principles is a much better person than the regular materialistic devotee and materialistic person. So like this, we have to also help Srila Prabhupada in his movement in doing the Sankirtan and preaching, because somebody asked Srila Prabhupada that Srila Prabhupada आप नहीं रहेंगे तो फिर preaching कैसे होगी और preaching नहीं होगी तो क्या होगा? So Srila Prabhupada said that no, if I am not there and then preaching will not go on, then these people will become hippies again. From happies they will become hippies again. So therefore we have to chant Hare Krishna and also spread Hare Krishna equally. Spreading of Hare Krishna and spreading of Hari Katha is very important, because Hari Katha is non-different from Radha Rani. And once Radha Rani is pleased, then Krishna is also pleased. Hari Katha is non-different from Radha Rani. And once Radha Rani is pleased, then Krishna is also pleased. Once Krishna is pleased, our heart is cleansed, and then we develop bhakti, and then we become purified, and then we are eligible to go back home, back to Godhead. Okay, so like this only we have to. Srila Prabhupada has given us a beautiful program of Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, to read and understand the process. You know that how we have to do our bhakti. So ऐसे in those days there was a lady who was very well read, but she was an atheist, and उसने आगे जाके क्या किया, उसने atheism में she did her PhD, and she was such a materially she was very, very highly qualified. And then suddenly she came across this Bhagavad Gita of Srila Prabhupada, and she read only 3 chapters. And after reading those 3 chapters, this PhD lady who did PhD in atheism, her attitude completely changed and she became a devotee. So this is the strength and this is the power of Srila Prabhupada's Bhagavad Gita, how Srila Prabhupada's Bhagavad Gita has changed and how our hearts have changed, our minds have changed only by reading Bhagavad Gita and understanding. Because there is something, that is why we have changed, that is why so many temples have come up, that is why so many people have become sannyasis today, and they are preaching all around the world, collecting so much funds, getting temples ready, getting devotees ready, ashrams are there, Gaushala is there, so much fund is needed for all this, prasadam, khichdi prasad is being served. How? But because of only purity. And purity kaise aayi? Because of chanting, because again, last point, Sankirtan. So by doing Sankirtan, by doing Harikatha, by reading Srimad Bhagavatam, what will happen? We will become pure. And once we become pure, then all this Lakshmi will come to us, everything will come to us, and there will be all auspiciousness. Vidhu noti suhrut satam. Ridhyantasti abhadrani vidhu noti suhrut satam. All the abhadras will go away and there will only be auspiciousness everywhere. Yeah? So that is why we have to read Bhagavatam every day. We have to see. People nowadays, they do vastu, they do different types of to get auspiciousness in their house. But in our life, we have to only do Narsimha prayers. That is the real auspiciousness, because we say
ito Narsimho, parato Narsimho. Inside also Narsimha, outside also Narsimha. So when we have Narsimha inside, when we have in us, we will always be pure and auspicious. When we have Narsimha outside, we will always be pure and auspicious. So if we chant the Narsimha prayers, it is it will give us purity and it will give us blissfulness. So we do not need to get into Vastu and all of these things and become, more superstitious about all this. Okay. Last week I was in Ujjain and I had attended the Srila Prabhupada Memorial Festival. Over there, I saw a lot of devotees. I met, a lot of bhaktas there who had come from various places. We had a lot of sannyasis, and we had Shruta Kirti Prabhu, who gave us so many examples. He gave us so many instances of his reciprocation, of his, with being with Srila Prabhupada, and how Srila Prabhupada, what was his mood of chanting, of preaching to everybody, and how Srila Prabhupada, how he was so different at different places, how he would deal with everyone with differently. With the same matter, he will deal with you differently. Tomorrow, he'll deal on the same matter differently with somebody else because he knew how the person was. And he knew how to talk politely with people and not hurt people by speaking harsh words. On the other hand, to the reporters, sometimes he would also speak harshly where it was needed. So it was a very nice experience that we all got. We chanted, we did kirtan, we heard katha one after the other. We heard about Srila Prabhupada. We heard about Srila Prabhupada. His, how he. Srila Prabhupada was totally into bhakti, how he taught bhakti. हमें भक्ति कैसे सिखाई Srila Prabhupada ने. But there was another aspect to Srila Prabhupada also. Srila Prabhupada had a lot of mystical powers. जैसे कुंभ मेला के एक इंस्टेंस है, एक एग्जाम्पल है. वहां पे एक कुंभ मेला में जो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे मिस्टिक पावर्स वाले आते हैं, तो वो अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं, अलग अलग अपने जो भी उनका वॉट एवर उनके पास सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं. तो एक डिवोटी बोलो या सिद्धि से प्राप्त वहां पे था. तो उसने आके शिला प्रभुपाद से कहा कि शिला प्रभुपाद, ये जो रेत है मैं इसको शुगर में बदल सकता हूँ. तो शिला प्रभुपाद ने कहा, अच्छा आप ऐसे कर सकते हैं, तो प्लीज आप मुझे दिखाइए, आप कैसे इतना अच्छा आपके पास जो सिद्धि है आप दिखाइए मुझे. तो उसने वो रेत ली और वो रेत को अपने मुट्ठी में रखा और कुछ मंत्र उच्चारण किए और उसको मुट्ठी खोली और देखा तो उसमें शुगर थी. तो शिला प्रभुपाद को दिखाया. ही वॉज वेरी प्राउड कि सर देखिए मैं इतनी अच्छी सिद्धि प्राप्त करके आया हूँ, मैं रेत को शुगर में बदल सकता हूँ, फिर इस शुगर को फिर से मैं रेत में बदल सकता हूँ. तो उसने फिर मुट्ठी बंद की और उसने फिर से कुछ मंत्र उच्चारण किए और फिर उसने उस शुगर को फिर से रेत में बदल दिया, है ना. तो फिर शिला प्रभुपाद ने कहा, अभी आप इस रेत को वापस शुगर में बदल सकते हैं. तो उसने फिर कहा, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ. जब मैं एक बार कर सकता हूँ तो मैं बार बार भी ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसकी सिद्धि प्राप्त करी है. तो ऐसे ही अलग अलग सिद्धियां हैं जिससे हमें क्या फायदा है वो पता नहीं, लेकिन शिला प्रभुपाद ने हम सबको सिखाया है कि सिद्धियां सब अलग अलग ऑस्टेरिटीज करके प्राप्त कर सकते हैं, बट देयर इज नो यूज. व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग दीज सिद्धीज? द ओनली सिद्धि दैट वी शुड हैव इज भक्ति एंड अंडरस्टैंड that Krishna is Bhagwan and we are a Jivera Swarupa Nityara Krishna Das. We are the Das and we have to do our bhakti
and move on in our life only by doing bhakti and kirtan, harikatha, sankirtan, and that's the way we have to live our life. So then when Prabhupada ने उनसे कहा कि आप वापस इस रेत को शुगर में बदल दीजिए, तो उसने फिर से मंत्र उच्चारण किए और फिर उसने अपनी मुट्ठी खोली और देखा वो रेत ही थी, वो रेत शुगर में नहीं बदली थी। तो वो बहुत ही अचंभित हो गया कि ऐसे कैसे हुआ, है ना। तो शिला प्रभुपाद ने फिर अपनी मुट्ठी खोली और देखा कि उनकी मुट्ठी में शुगर थी, ऐसे। तो शिला प्रभुपाद had a mystical side also which he never showed anyone because he knew कि इससे कुछ फायदा नहीं होना है। एंड और भी वहाँ डिवोटीज बहुत सारी बातें उन्होंने शिला प्रभुपाद के बारे में बताई कि शिला प्रभुपाद when he used to walk on the beach, जब मॉर्निंग वॉक करते थे, उनके कोई फुटप्रिंट्स नहीं दिखते थे बीच के ऊपर, जो दूसरों के फुटप्रिंट्स दिखते हैं ना, उनके नहीं दिखते थे फुटप्रिंट्स। He was such a divine soul, जैसे हम कहते हैं ना डेमीगॉड्स कैसे दे डोंट धरती पे नहीं चलते हैं, वो थोड़ा ऊपर होते हैं, ऐसे शिला प्रभुपाद के भी फुटप्रिंट्स नहीं हमें दिखते थे, वो ऐसे उन्होंने कहा। बहुत सारी उन्होंने बातें बताया। और शिला प्रभुपाद जब भी वृंदावन में इंस्टॉलेशन करने थे कृष्ण बलराम डेटीज के लिए, उन्होंने बहुत सारे डिवोटीज जहाँ पे जो वृंदावन के डिवोटीज है ब्राह्मणास को बुलाया, क्योंकि साउथ इंडियन ब्राह्मणास बहुत जरूरी होते हैं कि ये मंत्र उच्चारण करना। और ये तो जब ये ब्राह्मण आए, उन्होंने देखा कि यहाँ शिला प्रभुपाद के पास तो सब ये म्लेच्छ लोग, उनको तो लगा ये म्लेच्छ लोग हैं, सब वाइट बॉडी हैं, ये कैसे यहाँ पे रहेंगे। तो जब शिला प्रभुपाद उनसे बात करते थे, शिला प्रभुपाद वाज वेरी एफिशिएंट इन टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग he would never disrespect। तो जब उनसे बात की और कहा कि हम यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं कृष्ण बलराम जी का मंदिर, और आप आके इसको चैंट कीजिए, मंत्र और कीजिए, तो ये सब बातें करी और फिर कहा चलिए आप प्रसाद खाइए। तो फिर कोई ब्राह्मण कहते थे हम नहीं खाएंगे प्रसाद, क्योंकि उन्हें अंदर से डर था कि शिला प्रभुपाद के साथ तो ये म्लेच्छ हैं, कैसे खाएंगे हम इनके यहाँ। तो फिर वो चले जाते थे। तो फिर शिला प्रभुपाद ने उनसे इंस्टॉलेशन नहीं कराई, लेकिन जिन्होंने प्रसाद खाना अग्री किया, शिला प्रभुपाद जी ने उनसे वो इंस्टॉलेशन कराई। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट बाय डूइंग सैक्रिफाइस only on the, it is not possible in today's age to do sacrifice with so much strict regulation and cleanliness, because जब तक हम हरे कृष्णा जप करके हम अपना हृदय साफ नहीं करेंगे, we cannot reach any perfection. We can only reach perfection by chanting the holy name and chanting Krishna, by singing, talk. Even Krishna Katha bolna is also a kirtan. So by doing all this and taking Krishna Prasad, which is very important, one of the you can say components of bhakti is this eating Krishna Prasad. So all this is a package which Srila Prabhupada has given us in this age of Kali, in this age of Kalyug, because prayana alpayushaha sabya kalau asmin yuge jana manda sumanda matayo manda bhagya upadrita. So in this age of Kalyug, our lives are short, we are quarrelsome, we want to just fight with everybody, we want to just be selfish and keep everything for ourselves. Our lives are very short. So what is going to help us? Only this bhakti is going to help us, and Hari Katha is going to help us, Kirtan is going to help us. So we have to stick to this process very, very strongly, very rigidly. उज्जैन में बहुत सारे initiations भी हुए थे. So when they were getting initiated, they were saying the 4 regulative principles, and and they were saying that we will follow all the vows. उसके साथ they also said this, that we will never, never, never leave ISKCON. That was very important, because to get into bhakti is very easy, but to stick in bhakti is very, very difficult. But this process also can be made very soothing and easy. This process can be made very soothing and easy by doing devotional service to Lord Shri Krishna.
So we have to be very, very thankful. Why I spoke about Srila Prabhupada is because we have to be very, very thankful, very, very grateful for what he has given us. We have been chosen by the Lord to do this process, to understand this process. So we have to be so grateful to him who has given us this process, to our Guru Maharaj who has given us this, because without their mercy we cannot even speak one word. We cannot open the Bhagavatam and read and understand also anything. So that is why we have to be every day. Srila Prabhupada ko hame every day we have to show our gratitude and say thank you to him for what he has done, because this what he has done is, I mean, even thank you is very less for what he has given us. And if we can go back home, back to Godhead, that is the best gift we can give Srila Prabhupada. Hare Krishna. I think I'm on time today. Srila Prabhupada only, see, he went to the West with only 2 weapons. Can you tell me which weapons he had? 2 weapons he had. Very easy. अभी हम जितनी जो बातें करी हमने, वो उसमें से एक आंसर है. Bhagavad. Harinam is one. He had only one kartal, no? When he went at Thompson Square Park, he was sitting with the kartal and he had the order of his spiritual master. 2 things. Harinam and order of his spiritual master. 2 things he had. And he had faith in the order of his spiritual master, and he had the conviction that Harinam is going to help him. Just वो कीर्तन करते रहे और लोग उनके साथ जुड़ते गए. It is such a big thing. अगर आज हम नीचे कीर्तन करें अपने बिल्डिंग में, क्या हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे? Only if we are pure, it will happen with us. It will happen with us if we are pure. And Srila Prabhupada was so pure. Hare Krishna. Any comments? Any questions? आज मंडे, आज सब बहुत क्वाइट हैं. फर्स्ट डे ऑफ द वीक. बोलिए प्रभु जी. अपर्णा माता जी से शुरू करते हैं. अपर्णा माता जी. हरे कृष्णा राधा माता जी. बहुत बहुत सुंदर आपका क्लास माता जी. आप बहुत ही सुंदर बताते हैं. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है माता जी. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास. श्रील प्रभुपाद के पास टाइम्स के बारे में कितना सुनने को मिला. थैंक यू माता जी. आज का जो श्लोक था 13.3.32 का, तो इसमें एक ये श्लोक में हमें ये समझ में आता है कि कलियुग में और कोई भी साधन नहीं होना चाहिए. सिर्फ ओनली हमें संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए. सभी भक्त मिलके या अपने आप 16 माला ये जो जप करना, ये संकीर्तन हरि नाम जप करना, यही हमारा कलियुग में हमारा योजना है. हमारा भगवान के प्रति ये जो हमारा मतलब प्रभुपाद ने जो बताए हमें कि कलियुग में और कोई साधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि होगा नहीं, हम नहीं कर पाएंगे. कलियुग का वो धर्म ही है कि चैंटिंग. बिकॉज महाप्रभु ने स्वयं ये बता के गए कि हमें कलौ तद हरि कीर्तन आपने बताया जो हमें ये करना चाहिए, क्योंकि कलियुग में हमारा मंद भाग्य है. हमारा लाइफ बहुत शॉर्ट है, हमारा बहुत सारा डिस्ट्रैक्शंस है, तो हमारा माइंड इतना प्योर नहीं है, हम इतना क्लेंस मतलब माइंड इतना क्लेंस और प्योर नहीं है. तो हमें अगर हम ये चैंटिंग करें, हरिनाम संकीर्तन में भाग ले, हरिनाम करें, तो धीरे धीरे हमारा आत्म शुद्धि थोड़ा थोड़ा होता जाएगा और भगवान को हमें आनंद मतलब भगवान को प्राप्ति करने का मतलब भगवान को सेवा करने का जो आनंद वो धीरे धीरे जरूर हमें मिलेगा.
तो ये माता जी ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें सब कुछ बता रहा है कि क्यों हमें ये करना चाहिए, क्यों हमें चैंटिंग करना चाहिए, क्यों हमें संकीर्तन करना चाहिए, प्रीचिंग क्यों करना चाहिए। प्रीचिंग करने से प्रभुपाद भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको मतलब जितना हम मटेरियलिस्ट लोगों को बताए भगवान के बारे में, अगर वो सच में अगर सुने तो उनका कल्याण होगा। तो इसे से मतलब प्रभुपाद ये मिशन, उनका मिशन ही है कि भगवान के नाम संकीर्तन, भगवान के नाम, भगवान को बारे में सभी को बताना। तो अगर हम ये प्रीचिंग में ध्यान दे, प्रीचिंग करे, भागवतम, गीता और फिर हमारा चैंटिंग ठीक तरह से करे, ऑफ कोर्स विद 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, तो हमेशा ही हमें करना ही है, याद रखना है, क्योंकि बेसिस ऑफ हमारा इस्कॉन है। तो अगर हम ये दोनों मिला के प्रीचिंग भी करें तो भगवान ज्यादा मतलब खुश होगा। और माता जी आपने ये बताया बहुत सुंदर था, ये जो राधा रानी खुश होते हैं, मतलब जब हम हरि कीर्तन करते हैं तो राधा रानी खुश होते हैं। अगर राधा रानी खुश होते तो भगवान भी खुश होते, अगर भगवान भी खुश होते तो हमें बहुत आनंद आता है, मतलब हमें हमारा ऑस्पिशियसनेस आ जाता है लाइफ में। और फिर हम जो ऑस्पिशियस और प्रभुपाद भी खुश होते हैं, क्योंकि हम 4 रेगुलरली प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, फिर हमें संकीर्तन कर रहे हैं, फिर हमें उनका अगर बुक्स हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद, दैट विल बी अ गिफ्ट टू प्रभुपाद, बिकॉज ही वांट्स दिस कि सब घर में हमारा वो भागवतम रहे, फिर चरितामृत रहे, उन्होंने बोला था। तो और फिर आपने जो बताया ये नरसिम्हा प्रेयर्स हम अगर रोज करें तो दैट विल ब्रिंग ऑस्पिशियसनेस इन अवर लाइफ। हाँ, हम थोड़ा बहुत प्योर हो सकते हैं ये करके, ताकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कोई मतलब लोगों हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो इधर उधर यतुषियों के पास चले जाते हैं। तो वैसा नहीं करके भगवान के ऊपर भरोसा रख के फिर हमें ये अगर करें, भगवान को प्रसन्न करने का जो जो साधन प्रभुपाद ने दिया वो अगर हम फॉलो करें तो हमारा लाइफ में ये फेस करने का ताकत मिलेगा, और फिर जीवन धीरे धीरे फिर से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारा जीवन में तो ये आना ही है दुख, बिकॉज ये दुखालयम है। प्रभुपाद ने कहा कि हमारा ये अश्वशतम दुखालयम अश्वशतम, तो दुख हमें जरूर रहेगा, लेकिन भगवान के ऊपर अगर भरोसा है, अगर हम चैंटिंग अच्छी तरह से करते हैं तो ये भगवान का आशीर्वाद रहता है। तो फिर हम ये प्रॉब्लम्स लाइफ का ओवरकम करते हुए भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अब ने जो बताया माता जी, वो जो प्रभुपाद का मिस्टिकल पावर्स के बारे में जो एग्जाम्पल दिए एक साधु का, बहुत सुंदर था वो। और एक्चुअली प्रभुपाद ने ये ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद का बहुत सारा साधु ऐसा होता है कि मेरे पास जो सिद्धि है, सिद्धि से वो उसका माइंड घूम जाता है कि हमें सिद्धि है तो हम बहुत कुछ अचीव कर दी, लेकिन वैसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा सिद्धि जो है वो हमारा मन में रखना चाहिए कि कृष्णा को मतलब कृष्णा को खुश करना, और फिर हमें हमेशा याद रखना होता है कि वी आर कृष्ण दास, हमें भगवान का सेवा करना है। एंड वी हैव टू डू आल्सो चैंटिंग, संकीर्तन एंड ये जो 4 प्रिंसिपल्स सब बताया। तो ये है हमारा सिद्धि, जो जितना अच्छी तरह से ये जपा करेंगे या फिर प्रचार करेंगे उसका इतना बड़ा यही है सिद्धि हमारा स्किल लाइफ में। और फिर प्रभुपाद का जो हमने बताया मंदा जी, बहुत सारा पास टाइम्स ये जो उन्होंने बीच में वॉक करते हुए उनका फुटप्रिंट्स नहीं पड़ते बीच में, और फिर इंस्टॉलेशन डीटीज वो वृंदावन के बारे में हम जो बताए, हमें बहुत ये सब तो छोटा छोटा चीजें सब सुनते सुनते बहुत कुछ उनके बारे में धीरे धीरे पता चलता है। तो अपने जो बताए, वी कैन ओनली रिच परफेक्शन बाय चैंटिंग द होली नेम प्रॉपर्ली, अच्छी तरह से। और कंपोनेंट्स ऑफ भक्ति जैसे कि बताए, कृष्ण प्रसाद को हमें लेना ही है, क्योंकि प्रभुपाद ने ये जो ऑर्डर देके गए, मतलब ये जो फॉलो करने का, जो सुबह का जो मंगल आरती करना, फिर कृष्ण प्रसाद भगवान का सेवा पूजा करना, आरती करना बहुत मन से एकदम, तो ये बहुत ही शुद्ध, मतलब अगर कोई अच्छी तरह से करने से ये मन में आनंद आता है, शुद्धता आता है। और फिर आपने जो बताए वी हैव टू से मतलब प्रभुपाद को
थैंक यू हम मतलब प्रभुपाद को थैंक यू कैसे कर सकते हैं। प्रभुपाद को इतना हम ऋणी हैं उनके। अगर प्रभुपाद ना होता तो हमारा क्या होता, हमें ये इतना सुंदर साधु संग नहीं होता, ये इस्कॉन नहीं होता तो क्या होता, तो हमारा जीवन ही अलग हो जाता। माता जी थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वेरी नाइस क्लास। थैंक यू सो मच। श्री कृष्णा। प्रणाम माता जी, हम सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। Thank you. Very nicely said. Thank you so much, Mataji. Beautifully said. बहुत बढ़िया. I have a nice book here in front of me. It's saying Srila Prabhupada came to remind everyone that Krishna is a supreme personality of Godhead and that he is our most dear friend. So Srila Prabhupada आए हैं हमें रिमाइंड करने के लिए कि भगवान ही कृष्णा हैं और भगवान कृष्णा हमारे डियर फ्रेंड हैं और हमें भगवान की भक्ति करनी है by keeping our desires towards Krishna simple, because हम लोग क्वाइट तो बैठ नहीं सकते, हम डिजायरलेस हो नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम अपने डिजायर्स एक्टिविटीज को प्योरीफाई कर सकते हैं by putting it towards Krishna. हमें घूमने जाना है तो हम तीर्थ स्थान जा सकते हैं, हमें कुछ प्रसाद खाना है अच्छा तो हम भगवान को भोग लगा के खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जो भी है, बट कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर. वेरी इजी टू डू, so everyone should do it. We should be very grateful that, and we should have our children to start from childhood, because बच्चों का हृदय ना एकदम सॉफ्ट होता है. तो हम जैसे बच्चे होते हैं उनका हृदय इतना सॉफ्ट है, जो भी आप इम्प्रेशंस उसमें डालेंगे वो उस पे जल्दी से वहाँ इनग्रेड हो जाता है. एंड देन स्लोली विद टाइम वो जो सॉफ्ट इम्प्रेशन है वो हार्ड होता जाएगा. तो जब हम बच्चे छोटे हैं तो उनके अंदर आप ये डालोगे कौमार आचरित प्राज्ञो, जब आप डालोगे भगवान की भक्ति कैसे करनी, स्मॉल इजी वेज, और थोड़ा बच्चे माँ बाप को भी देखते हैं कैसे वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनको देख के वो उनके इम्प्रेशंस उनके हृदय में आ जाता है, और जब वो स्लोली उसको देख के वो भी सीख जाते हैं हाउ टू डू कृष्णा कॉन्शियसनेस. So that is a duty of us as parents to also deliver this to children, and then these children will move on further and deliver this Krishna consciousness to others also. Hare Krishna. हरे कृष्णा. मेघा माता जी. जी प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम. हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम. थैंक यू फॉर नाइस सेशन माता जी. इट वाज रियली वंडरफुल, वेरी इंस्पायरिंग. जैसे आपने प्रभुपाद का भी बहुत सारा ऐसा पास्ट टाइम बताया, तो रियली ऐसा बहुत उनके प्रति जो श्रद्धा है ना, मतलब फर्स्ट प्रभुपाद तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीज देख चुके हैं, और लेकिन ये पास्ट टाइम जो आपने कुछ ऐसे सीढ़ियाँ जो बता रही थी कि प्रभुपाद हैज ऑलरेडी ऑल दिस सीढ़ियाँ, जैसे आज के टाइम में लोग जो है जो सिद्ध बाबा लोग होते हैं उनके पीछे बहुत भागते हैं, उनके फ्लोर्स बहुत होते हैं. तो हमको ऐसा स्ट्राइक करता था कि प्रभुपाद तो इतने बड़े भक्त कृष्णा का, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जादू वगैरह नहीं दिखाया, ऐसा समथिंग. लेकिन कुछ ऐसे पास्ट टाइम्स है जो हमें नहीं मालूम, जो आपसे हमें पता चला कि प्रभुपाद हैज ऑलरेडी so many सिद्धियां, बट उन्हें मालूम था कि इस कलयुग में ये सिद्धि कुछ यूजलेस है, कुछ काम करने वाला नहीं है. अल्टीमेट हमारा जो है ना, जो बेनिफिशियल्स जो हमारे लिए है वो हरिनाम है, जो हमें इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना उससे बचा सकता है. तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा इस पे स्ट्रेस दिया. और इसका जो है आपने ये जो प्रीचिंग के बारे में बताया, हाउ प्रीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जैसे डिवोटीज ने भी पूछा प्रीचिंग के बारे में, तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट बोला कि मतलब ये प्रीचिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जितने भी जो हिपीज जो कन्वर्ट हुए हैं ना, हैप्पी बने हैं, अगर हम प्रीचिंग नहीं करेंगे तो वो फिर से हिपीज बन जाएंगे. तो मतलब ऐसा अभी लगता है कि जो भी मतलब हमारे सोसाइटी में अभी हम देख रहे हैं, इंडिया का भी जो ट्रेडिशन कल्चर्स है ना डिग्रेडेड हो रहा है. तो मतलब हमें लगता है कि हमें कितना इंटेंसली और बहुत ज्यादा मतलब प्रीचिंग करने का जरूरत है, मतलब क्योंकि
हम लोग ऐसा देख सकते हैं सोसाइटी में, कैसे लोग जो है ना विदाउट एनी मतलब जो काम का भी चीज नहीं है, जो उसमें ऐसे फंसे हुए हैं और अपना लाइफ को एकदम वर्स्ट बनाए हुए हैं। और लेकिन ये कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसे हमें जो है ना एक हैप्पी लाइफ देता है, वो हमें डिफरेंसेस करके, जो आपने बताया ना एक भक्त नॉन डिवोटी और डिवोटी के बीच में आप डिफरेंसेस खुद देख सकते हैं। तो हम जैसे रिसेंटली मैं ना मायापुर गई थी, तो मतलब वहाँ के सारे भक्तों को देखते तो ऐसा ही लगता है कि कितने ये लोग इंथुसियास्टिक हैं, कितने अच्छे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स हम भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना एसोसिएशन, वो चीज उनको वहाँ पे बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। मायापुर में हर जगह हरि नाम, हर एक स्टेप्स में जाओ तो कुछ ना कुछ हरि नाम कथा प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। मतलब ये चीज देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ फिर से वहां जाते तो पूरा रिवाइव हो जाता है सारा चीज, लेकिन फिर से घर आते हैं, वापिस आते हैं तो फिर वही चीज मतलब एसोसिएशन वैसा नहीं मिलना, फिर से हम मतलब अपना डे टू डे लाइफ उसी तरह से चलने लगता है। लेकिन मायापुर जाने के बाद सब चीज एकदम अच्छा लगता, नहीं भक्ति तो बहुत जरूरी है, भक्ति एकदम इंटेंसली करना होता है। मतलब वहां पे सुबह भी उठ जाना होता है, कम सोकर भी सुबह उठ जाना होता है, और बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक फील होता है। लेकिन यही घर पे नहीं हो पाता। तो वही हमको लगता है कि कितने फॉर्चुनेट है वो कि उनको यहाँ पे ऐसा एसोसिएशन मिला है, ऐसा धाम में रहने का मिला है। और ये माता जी, और आपने एक श्लोका जो बताया था, वो श्लोका बहुत अच्छा। ऐसे तो मैंने ये श्लोका के बारे में बहुत मतलब क्लास में सुना है और इसका एक्सप्लेनेशन भी, और लेकिन आपने भी बहुत अच्छे से इसको क्लियर किया। जैसे ये श्लोका है, ओम पूर्णम अदा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उद्यच्यते पूर्णस्य पूर्णम अदाय पूर्णम एवं वशिष्यते। तो इसमें बताया कि भगवान का हर एक पार्ट, एवरी पार्ट जो है ना, मतलब वो पूर्ण है अपने आप में। हाँ, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे कि भगवान जो है ना सिर्फ आंख से देख ही सकते हैं हमारे जैसा, लेकिन दे कैन डू एनीथिंग है ना थ्रू हिज आईज। तो ये चीज आपने ये एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छा लगा माता जी, और अच्छे से क्लियर हुआ। जैसे कि हमें ऐसे वो जो ईशोपनिषद में बताया गया, जैसे कि भगवान के जो एनर्जी है, जो एक्सपेंड होते हैं ना, इवन वो जो एनर्जी निकलने के बाद भी वो नहीं रहते हैं। मतलब मतलब कहा जाता है कि लाइक इनफाइनाइट से हम अगर कुछ निकालते हैं तो वो इनफाइनाइट रहता है, ऐसा समथिंग। तो ऐसा हम लोग को समझाया गया था, तो इस तरह से। लेकिन आपने ये जो बताया ना कि ईच पार्ट इज फुल इटसेल्फ, तो ये चीज है कंप्लीट इटसेल्फ। तो ये आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा माता दी, थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी मेरा धन्यवाद प्रणाम माता जी। बहुत टाइम के बाद आपको देखते हैं तो सारी मेमोरीज आ जाती। दामोदर देश के जो आपके घर में सेवा करते थे वो तो दिन आज भी याद आते हैं। आपका घर भी याद आता है कि भक्तों के घर में सेवा करने का हमें भगवान ने अवसर दिया। माता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी एक प्रश्न ये था कि जैसे हम देखते हैं कि जो ये जो प्रभुपाद जी को मिले थे जो सिद्धि वाले बाबा, तो अगर हम देखें तो जैसे कि अगर उनके पास एक सिद्धि ये थी कि वो जाके रेत से मतलब प्रभुपाद जी को दिखाते हैं कि मैं इसको शुगर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो अगर हम ऐसे देखें तो माता जी ये जो सिद्धि है क्या वो भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते थे? क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो इन द केस ऑफ जॉर्ज हैरिसन, उनके पास भी सिद्धि थी कि वो बहुत अच्छा एक्सट्रीमली एक ऐसे इतने अच्छी तरीके से वो गा सकते थे कि उन्होंने उसको भगवान की सेवा में लगा दिया। तो अगर ये जो बाबा थे, अगर एक व्यक्ति चाहे, जीवात्मा चाहे तो जैसे कि वो शुगर में बदल सकते थे, तो भगवान का इतना प्रसादम बनता है, उसके लिए टेम्पल मतलब अथॉरिटीज को इतनी लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। तो ये अगर वो चाहते तो जो मतलब भक्तों के लिए जो प्रसाद बनता है, जो मीठा बनता है, उसमें ये शुगर वो काम ला सकते थे ना। मतलब ये एक जैसे कि जॉर्ज हैरिसन ने किया। माता जी ये प्रश्न था। हाँ जी, तो जॉर्ज हैरिसन का क्या मूड था
कि उसने जो भी कमाया वो भगवान की सर्विस में लगा दिया। हम सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। जॉर्ज हैरिसन के पास क्वालिटी थी टू सिंग एंड चैंट, सो एंड ही वाज अ भक्ता आल्सो, तो उसने भगवान की सेवा में लगाई। लेकिन ये जो साधु मिला था, ही वाज शोइंग ऑफ इन फ्रंट ऑफ शिला प्रभुपाद के देखो मैं ये कर सकता हूँ। मतलब वो अपने आप को एक अलग एंटिटी मानता है भगवान से, ठीक है। वो भगवान का सेवाधारी नहीं मानता है अपने आप को, भगवान का दास नहीं मानता है। वो अपने आप को अलग एंटिटी मानता है कि मैंने अपने बल से ये सिद्धि प्राप्त करी है। देन व्हाट इज द यूज? सिद्धियां तो आई सब भगवान से हैं, सब कुछ भगवान से आया। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिद्धि? तो अगर आपके जो भी इस सृष्टि में जो भी है वो तो इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द अबव, है ना। इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो यहाँ पर भी है। तो मतलब कि जो यहाँ पर है वो सब हम भगवान की सर्विस में लगा सकते हैं। So if he had that understanding जो शिला प्रभुपाद ने हमें दी कि बाबा आपके पास जो भी है वो आपसे नहीं आया है, वो भगवान से आया है, आप भगवान के दास हो, उसको भगवान की सर्विस में लगाओ। ये अंडरस्टैंडिंग, ये टीचिंग्स जो हमें मिली है वो उन्हें नहीं मिली। उन्हें मिली सिद्धि करो, अपना नाम बढ़ाओ, मैंने किया। That is the difference. If he would have used it in the service and come into Krishna consciousness, understanding that Bhagwan kaun hai, Krishna. So many people don't know, even Hindus don't know. They say Bhagavad Gita, Gita pe haath rakho ke main jo kahunga. Why they say only Gita? Because Gita is our scripture, and because Gita is our scripture and Gita is said by Krishna to Arjun. Krishna is telling him कि मैं ही भगवान हूँ, surrender सर्व धर्मान, but still people do not understand that Krishna is Bhagwan. So we have to worship Bhagwan. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Dandavat pranam. Are you satisfied or you still feel something? We can clarify. या माता जी, भगवान ने मतलब उनको यही था कि ही इज नॉट गेटिंग, जो साधु ने ऐसे मतलब दिखाया कि मैं ही कर, तो उनको वो भगवान ने बुद्धि नहीं दी होगी, क्योंकि उनको भगवान मतलब प्रभुपाद जी का एसोसिएशन नहीं मिला, और मिलने के बाद भी वो अपने ही पफ्ड अप थे ईगो में कि मैं ये कर सकता हूँ। भगवान ने उन्हें मौका दिया शुद्ध भक्त से मिलने का। बिकॉज उन्होंने भक्ति नहीं करी ना। मेन मेन कोर, द क्रक्स इज भक्ति, दास, humility, come down. Don't say that I can do it. Don't say that. Say that everything comes from Bhagwan. That is what is important. Today, if you have cooked something, and if you see, when I went to Ujjain, and सब वहाँ पे चंद्रमौली महाराज थे, वहाँ पे उनकी ना पाद पूजा हो रही थी, उनका व्यास पूजा थी, पाद पूजा हो रही थी। सब लोग बोल रहे थे चंद्रमौली महाराज की जय। So what did Maharaj say? Srila Prabhupada ki jai. He took that and he offered it to Srila Prabhupada. He offered it there because he knows, he feels that I am nothing because Srila Prabhupada has taught me everything. Srila Prabhupada के नहीं होते तो हम नहीं होते. So that thought is there in their head. So we have to always hit our head every day saying that we are nothing without Krishna, without our Guru in our lives. If we have any qualities, we get it from them. So we use it in their service, not for our service. Of course, we need to eat food, we need to do things for ourselves. But if we do, as I said, we do it keeping Krishna in the center, then that purpose is solved. यस माता जी, अभी क्लियर हो गया। और वो माता जी यही था ना, जो भी भगवान से हमें मिलता है अगर हम उनके सेवा में लगाते हैं तो वो और भी शार्प होता है, निखरता है जो क्वालिटी हमें मिलती है। यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम बेटा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपके पास टाइम है? और एक हैंड रेज्ड है, प्रतिभा माता जी। हाँ जी जी प्रभु जी। प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
मुझे ये क्वेश्चन था कि ये लोग मैजिक दिखाते हैं, वो भी सिद्धि है क्या? ये मैजिक दिखाते हैं देखो। और दूसरी क्वेश्चन ये कि मेरा अभी सभी क्या बोलते हैं, सबका ये अलग अलग स्पीच आता है। कोई क्या बोलते हैं, कहीं भी बैठो कभी भी जाप करो, लेकिन जाप करो। हाँ? लेकिन और कोई अभी ये शिला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, 16 माला जाप करो। तो एक ऐसा कहानी सुनी है मैंने कि एक साधु जी थे, साधु जी वो तो जाप कर रहे थे हाथ में माला लेके। और एक ऐसा दूध वाला होते हैं ना, वो दूध बेचने आते हैं वो, दूध किसी ने ये मेजर के हिसाब से दूध मांगा, तो मेजर के हिसाब से कोई किसी को 1 लीटर, किसी को आधा लीटर, वो साधु जी देख रहे थे। और एक जन ने दूध मांगा तो उसको बिना काउंट हुआ ऐसा ही पूरा दे दिया दूध, काउंट ही नहीं किया। तो बोलते ऐसे कैसे, इनको बिना पूछे ऐसे कैसे दिया है? तो बोलते नहीं, मेरा प्रेम है। इसका मतलब है प्रेम है तो काउंट करके क्यों करने का, मतलब प्रेम है तो बहुत करने का, ये काउंट करके क्या? अबे ये पूजा करते ना, पूजे के टाइम भी ऐसे बोलते हैं कि कोई बोलते हैं 1000 तुलसी माला, तुलसी पत्र, वो 1000 तुलसी पत्र काउंट करके या काउंट करके कुछ भी ये करो। कोई बोलते है कि नहीं, जो हाथ में आएगा वो करो, वो प्रेम से करने का है। तो किसकी बात सुनने का? एक क्वेश्चन आता है ऐसे, किसकी बात सुनने का? सबका अलग अलग स्पीच आता है ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं जी। तो पहली बात, जो शिला प्रभुपाद जी हमें कहते हैं हमें वही फॉलो करना है, ठीक है? जैसे हम बच्चे छोटे होते हैं क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी ने जो बोला है, मेरे पापा ने जो बोला है, मैं वही फॉलो करूंगा। तो जब आपके पास अगर प्रतिभा माता जी ये फेथ है कि भगवत गीता में जो लिखा है शिला प्रभुपाद ने हमें दिया है वो सही है, तो जो शिला प्रभुपाद जी बोलेंगे हम वो करेंगे। शिला प्रभुपाद जी पता है 64 राउंड्स खुद चैंट करते थे, लेकिन हमें दिए 16 माला करने को, क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं कर पाएंगे अपने गृहस्थ जीवन में रह के, या जैसे भी नहीं रह कर पाएंगे 64। वो खुद तो करते थे लेकिन हम नहीं कर सकते। वो 2 बजे उठ के लिखते थे, भागवतम ट्रांसलेट करते थे, हम नहीं कर सकते हैं। वो हमारे लिए करते थे ये सब, ठीक है? तो इसीलिए बहुत से लोग बहुत बातें बोलते हैं। आजकल पूरा इंटरनेट आया है न्यूट्रिशन के बारे में, ये खाओ, वो मत खाओ, वो खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, दूध भी मत पियो। बट what suits your health, you know better what suits your health. आपको एक इंट्यूशन आएगी ऑलवेज कि ये मुझे सूट नहीं करता, मैं ये नहीं खा सकती, ये मुझे सूट करता है, मैं ये खा सकती हूँ, बिकॉज एवरी बॉडी इज डिफरेंट, है ना? इसी तरह से शिला प्रभुपाद की जो टीचिंग्स हैं वो आप फॉलो कीजिए तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपको अगर काउंटिंग का वो लगता है तो शिला प्रभुपाद ने 16 माला बोली, आप 16 कीजिए, है ना? वो कीजिए, किसी और के आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ये फेथ है, आपको फेथ है शिला प्रभुपाद में माता जी? हाँ है फेथ है। मैं तो बहुत सालों से, ये 32 सालों से मैं ये उनको फॉलो कर रही हूँ। बस फिर जब आपको फेथ है और आपको बहुत सारी बातें समझ भी आई होंगी, बहुत सारी बातें आपको खुद से ही समझ आई होंगी कि ये राइट है, ठीक है? तो ऐसे ही आपको फेथ है तो आप कीजिए और आप उसमें ही सफल रहेंगी। देन यू डोंट हैव टू थिंक कि 16 करनी है या नंबर के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। बस फिर जो प्रभुपाद जी ने कहा है वी फॉलो दैट।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चरणों हरे- में कोटि कोटि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम माता। प्रभु। बहुत हरे अच्छा, कृष्ण। बहुत अच्छा सेशन रहा। काफी सारे आज क्वेश्चंस भी निकले, बहुत अच्छा जर्नी हुआ। सो थैंक यू फॉर दैट माता। और हरे- ऐसे ही आप सन देते रहिए माता, आते रहिए। हरे कृष्ण। आई थिंक आपको भी सेवा होगा, तो विल स्टॉप जी हियर एंड जी प्रभु। नर्सिंग आप ही लेते हैं। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। वंशा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, जी जय। जय, गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता। प्रणाम। जरूर।